So by now I hope you understand what is difference between normal loss and abnormal gain. Is it clear everybody? Any doubt? No, ma'am. Okay. So now look at this format. What is the format of making process account? You have to make process account. Suppose three process accounts are there. A product has to pass through three processes. So you have to make three process accounts. If a product is passing through two processes, then you have to make two process accounts. Okay. See how you need to make the columns. Here one column is missing. You will have to make that also. Particulars, quantity, rate, amount. So rate column is missing. Rate means per unit. Again, particulars, quantity, rate and amount. So Q, R, A, that is quantity, rate and amount. Okay. So left hand side 4 columns, right hand side 4 columns. Thus uh, I hope you know how to make ledger account. So this is similar to, this is ledger account only. Okay. But here amount column is divided into three parts: quantity, rate and amount. After particulars we were making amounts column, but here one amount ka column will be made, and then two columns will be made related to quantity and rate. Quantity will be in kgs, units, any type of unit will be there, like kgs or milliliter or quintals or tons. So any unit will be given. Okay, all expenses will be recorded on the debit side. Always same method. Raw material introduced means input. Direct material, direct labor, direct expenses, factory expenses, manufacturing expenses. Okay. Here you will record your losses by normal loss, rate loss, by abnormal loss. Okay. And if it is a profit, you will have to bring it to the debit side to abnormal gain. Losses will be here on the credit side. Buy means debit. Losses are always debited. So buy normal loss, buy abnormal loss. Okay. And gains are always credited. So to means to credit. To abnormal gain. Did you understand the format? Yes. Okay. So now you have to close. After closing, you will get a balancing figure. And that balancing figure will be the output for process 1, will be transferred to the process 2 as the input. See, see this output, by output carried down. That means carried down to where? Carried down to where? Process 2. That Process means, 2 yeah, input. input, very good. Because this is output for process 1, and the same output for process 1 will become input for process 2. Therefore, we are taking this output to process 2. Therefore, we have written by process 2. So here we will write to process 1. See, in process 2, we have written to input from process 1. Because for process 2, it is input. And It for is an process input. 1, it was It output was for process. output. Yeah, it was output. Is it clear now? Yes, ma'am. And suppose this is the last process. This is the last process, suppose. So you will record all the expenses. Okay. You will record abnormal gain if it is there. You will record normal loss. It is always there. और normal loss तो हमेशा होगा. abnormal loss है तो रिकॉर्ड करेंगे. तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? एक बैलेंसिंग फिगर जिसे हम कहते हैं फिनिश्ड स्टॉक. मतलब अभी ये कहीं जाएगा नहीं, ये किसी प्रोसेस में नहीं जाएगा, ये फाइनली फिनिश्ड स्टॉक में कन्वर्ट हो गया. ये मेरा फाइनल आउटपुट है जिसे हम फिनिश्ड स्टॉक कहते हैं. और यही वो फिनिश्ड स्टॉक है जिसको अभी हम वेयर हाउस में भेजेंगे और उसको फिनिशिंग करके मार्केट में बेचेंगे. आया समझ में? सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am.
Hmm. See, this is a basic question that is given here. We will start with practical question. See, a product passes through three processes A, B, and C. Always remember, when you are starting your sum, before starting, you have to draw the lines and all you have to do. Okay. After drawing your lines, okay, you have to directly come to working note number one. Without that working note number one, you will not be able to start your sum. So after drawing the lines, you have to start with working note number one. Okay, I will tell you what is that working note and how it is to be made. Okay, now see sum number one. A product passes through three processes. Now already they told you, they have informed you that a product is passing through how many processes? How many? Three processes A, B, Three. and C. A, B, and C. Very good. So the particulars, a few items are given here related to each of these stages. First is percentage of loss. Now, which is this loss? Normal loss. Which is this loss? Normal loss. Yes. Abnormal loss and abnormal gain directly वो खुद से कभी नहीं देंगे. They will not give you. We will have to find out. So that's why I told you, no? In step number, working note number one, you will find out whether whether we have abnormal loss or we have abnormal gain or we have nothing. So three possibilities are there. In working note number one, we are going to find out that thing. ठीक है. तो परसेंटेज ऑफ लॉस दिया हुआ है 2%, 5%, 10%. किसका किसका 2%, 5%, 10%? इनपुट. ए का जो इनपुट होगा, बी का जो इनपुट होगा, सी का जो इनपुट होगा. ठीक है. सेल प्राइस पर 100 यूनिट्स ₹5, ₹5, ₹20. ये सेल प्राइस किसका दिया हुआ है? ये स्क्रैप. स्क्रैप मतलब अभी देखो, अब बिस्किट का एग्जांपल दिया था मैंने आपको. बिस्किट्स जो टूट जाते हैं तो कंपनी क्या करती है? उससे डस्टबिन में डाल देती है? नहीं. वो टूटे हुए बिस्किट्स जो है ना, उनको मेजर करके तोल कर वो अपने ही लेबरर्स को सस्ते में देते हैं. पता है आपको ये? क्योंकि लेबरर्स तो मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं. वो ऑलरेडी उनकी वो जो उनकी आमदनी होती है, उनकी जो इनकम होती है, वो इतनी कम होती है. तो वो थोड़ी मार्केट से बिस्किट्स खरीदते हैं. तो वो क्या करते हैं? अपने ओनर से ही खरीदते हैं सस्ते में. वो टूटे हुए बिस्किट्स होते हैं ना, वो लेबरर्स खरीद के जाते हैं. या कोई कोई ओनर तो ऐसा होता है फ्री में दे देते हैं. ठीक है. तो जो स्क्रैप में बेचते हैं ना हम, रद्दी के भाव में, स्क्रैप में, तो रद्दी के भाव को तो आप अपने लॉसेस को ही बेच सकते हो ना, जो आपके नुकसान हो गया. तो आप सोचोगे ना, समझो 2000 का नुकसान हो गया तो रद्दी के भाव में 200 रुपए तो मिलेंगे. सो 1800 का नुकसान बचेगा हाथ में. 200 रुपीज तो रिकवर हुए एटलीस्ट. ऐसा सोचते हैं ना हम. हाँ या नहीं? हाँ मैम. हाँ, बिजनेसमैन तो ऐसे ही होता है, एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है उसको. तो सेलिंग प्राइस पर 100 यूनिट किसके लिए दिया हुआ है? ये लॉस के लिए, मतलब स्क्रैप. स्क्रैप में बेचा इसने. ठीक है. पर 100 यूनिट्स. ठीक है. उसने ₹5 में बेचा, ₹5 बी को भी और सी को ₹20 में. एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स. अब ये क्या चीज़ है? ये मैं आपको वर्किंग नोट नंबर वन में समझाऊंगी. ठीक है. एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स हम समझेंगे वर्किंग नोट नंबर वन में. और एक खर्चा दिया है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. ये तो जो प्रोसेस के खर्चे होते हैं. ये प्रोसेस वन में भी इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर का खर्चा, इतना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब तो प्रोसेस वन में भी लगा, प्रोसेस टू में भी, प्रोसेस थ्री में भी. सबके अपने अपने खर्चे होते हैं. बताया था ना मैंने, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती है हर एक स्टेज में. तो वही तो है. देखो, खुद की अपनी अपनी सबकी कॉस्ट है. सबकी अलग अलग कॉस्ट है. इधर 6000 है, इधर 4000, इधर 2000. मटेरियल कम लगता जा रहा है. इधर सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल लगा, इधर थोड़ा रॉ मटेरियल और चाहिए, इधर थोड़ा कम चाहिए पर चाहिए. डायरेक्ट लेबर यहाँ पे 8000 का खर्चा है, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 3000 का. सो सबका अपना अपना खर्चा है प्रोसेस का. ड्यूरिंग द मंथ, अभी ध्यान देना, ड्यूरिंग द मंथ 20,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोसेस ए. 20,000 यूनिट्स मतलब रॉ मटेरियल वर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब रॉ मटेरियल को हमने इंट्रोड्यूस किया तो हम क्या बोलते हैं? इनपुट.
जब हम रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं पहले पहले प्रोसेस में, तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट। हाँ, ये प्रोसेस ए मतलब फर्स्ट प्रोसेस का इनपुट दिया हुआ है, फर्स्ट प्रोसेस का इनपुट। अब आप बोलोगे मैम बी प्रोसेस का इनपुट और सी प्रोसेस का इनपुट, वो तो हम निकालेंगे ना। आउटपुट है वो प्रोसेस बी का हाँ, इनपुट हो जाएगा। वही तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है। उसी के लिए तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है कि ए का आउटपुट क्या है तो बी का इनपुट मिल जाएगा, बी का आउटपुट क्या है तो सी का इनपुट मिल जाएगा। चलो यस नेक्स्ट मैम। देखो, 20,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस ए एट द कॉस्ट ऑफ ₹10,000। अब ये जो इसी कहते हैं बेसिक रॉ मटेरियल, प्रोसेस ए का ये जो बेसिक रॉ मटेरियल है ना इनपुट, उसका खर्चा कितना, जो मैंने खरीदा तो उसका 10,000 रुपए का खर्चा। ये खर्चा हम डेबिट साइड दिखाते ना, अभी अभी तो दिखाया था। ये देखो फिर से देखो, इसे हम डेबिट साइड दिखाते हैं, डेबिट में। ये देखो, टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड दिखा रहा है ना, हाँ या नहीं? यस हाँ मैम। मैम। यस मैम। क्वांटिटी में लिखोगे 20,000 यूनिट्स, अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, और अमाउंट में लिखोगे 10,000 रुपए। 20,000 यूनिट्स 10,000 रुपए, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। अभी एक कॉलम नहीं बनाया इन्होंने, हम बनाएंगे रेट का कॉलम बीच में, क्वांटिटी फिर रेट फिर अमाउंट। हमारे लिए कितने कॉलम्स होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 4 कॉलम्स, राइट हैंड साइड में 4 कॉलम्स। ठीक है, ओके। सो प्रिपेयर रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट्स। रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट्स मतलब प्रोसेस ए का मतलब जितनी भी डिटेल्स हैं वो ए में जाएंगी, बी की जितनी डिटेल्स हैं वो बी में, सी की जितनी है सी में। एंड ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट बाय यूनिट मतलब कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोसेस। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस हम कैलकुलेट करेंगे, सिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं सम, लिखो ऊपर से प्रोसेस अकाउंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रोसेस अकाउंट्स फॉर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है ये ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एम, प्रोडक्ट क्यू, ऐसे नाम होते हैं ना वैसे, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट को कितने प्रोडक्ट्स कितने प्रोसेस में से पास होना पड़ रहा है? 3। तो आप उसके नीचे आ जाइए, आपने लिखा प्रोसेस अकाउंट्स फॉर प्रोडक्ट ए। अब नीचे आ जाइए, 3 प्रोसेस बनाने हैं ना मुझे, तो लिखिए प्रोसेस ए अकाउंट। ये देखो ना यहाँ पे सब बना हुआ है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे बनाया है उन्होंने, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, मैम। तो प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे पहले आप, लिखिए ऊपर से प्रोसेस ए अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड में लिखेंगे क्रेडिट, जैसे इन्होंने लिखा है। ये देखो यहाँ पर अब लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करो। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, मार्जिन को यूज करो, जो मार्जिन है ना उसको भी यूज करो, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी आपको। पर्टिकुलर्स कॉलम, पेज को बीच में डिवाइड करते हैं ना हम लोग, लेजर अकाउंट बनाते तो बीच में डिवाइड करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, उसमें 4 कॉलम्स बनेंगे, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। रेट का कॉलम है ना बिल्कुल पतला, बिल्कुल बिल्कुल स्लीक कॉलम बनाएंगे। जैसे हम कैसे लिखते हैं 20.00, 40 पर यूनिट, 2 पर यूनिट, 2.68 पर यूनिट। कितनी स्पेस चाहिए होती है वो लिखने के लिए? पर यूनिट भी नहीं लिखना, 2.68, 9.34, 40.00, हम ऐसे लिखते हैं ना, बस उतनी सी जगह। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। रेट मतलब वही पर यूनिट अपना, जो सीपीयू होता है। अगेन राइट हैंड साइड में सेम कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बनाए, कॉलम्स बना लिए प्रोसेस ए के। बना लिए, कम ऑन। यस मैम। ओके, अब आ यस जाओ मैम। प्रोसेस 2 पे। कुछ लाइंस छोड़ दो, मतलब
एक पेज पे 2 प्रोसेस बनाएंगे हम, एक पेज पे 2 प्रोसेस। तो आधा पेज आप प्रोसेस ए के लिए रख दो और आधा पेज नीचे जो है वहां पे प्रोसेस बी बनाओ। बनाओ ऐसा वाला सेम रेट के कॉलम के साथ बनाओ प्रोसेस बी उसी पेज पे नीचे। मतलब आधा पेज आप ले रहे हो ए के लिए, आधा पेज लेंगे बी के लिए। देखो क्लमजी नहीं लगना चाहिए, एक ही पेज पे कोई कोई बच्चे ना तीनों प्रोसेस बना देते हैं, इतना गड़बड़ हो जाता है, जगह कम हो जाती है ना तो गड़बड़, क्योंकि जगह कहाँ से लाओगे तुम। देखो स्पेस बच जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए अकाउंट्स में। तो प्रोसेस बी बनाएंगे सेम, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड लिखेंगे क्रेडिट और नीचे लाइंस ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी सेम पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। बनाया। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, ऐसा ही प्रोसेस सी बनाइए, ऊपर ऊपर पेज के टॉप में लिखो प्रोसेस सी। बनाओ ऐसा जैसे बुक में लिख रहा है आपको। रेट कॉलम के साथ पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड में, अगेन राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट। हो गया, ड्रॉ हो गया सबका। यस नो कुछ तो बोलो। मैम 1 sec। ओके हो गया मैम। हो गया, वेरी गुड। ओके वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अब आपने प्रोसेस सी बनाया, प्रोसेस ए बी सी बनाया, अब छोड़ दो आधे में। अब वो लाइंस को अभी हम फिल करेंगे, वो टेबल्स को हम, अकाउंट्स को, पर उसके पहले हमको बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1। अब वो कैसे बनाना है वो यहाँ पर देखेंगे आप। देखो ये पता नहीं क्यों अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखो ऐसे बनाना है आपको वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना, ऐसे बनाना है। दिस इज सम नंबर 1। देखो कैसे बनाना है ये वर्किंग नोट नंबर 1। पहले तो 4 कॉलम्स बनाकर दीजिए, पर्टिकुलर्स, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। बनाओ ये 4 कॉलम्स बनाओ। बनाए। डन मैम। इसको लिखेंगे ऊपर से वर्किंग नोट नंबर 1 इन यूनिट्स। ये हमेशा पहला जो वर्किंग नोट बनता है ना ये यूनिट्स में बनता है, पूरा का पूरा ये यूनिट्स में होता है। तो आपने जो बनाया ना वो पूरा यूनिट्स अभी बनाएंगे। अभी देखो, पर इसका ना फॉर्मेट पहले देख लो आप, फॉर्मेट इनपुट
सबसे पहले शुरू करेंगे इनपुट में से। इनपुट, जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते तो ना कुछ लॉस होता है, जिसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। कुछ तो वेस्टेज होती है, जिसे कहते हैं नॉर्मल लॉस, ठीक है ना। अब वो मैंने वेस्टेज को, उसको बोला नॉर्मल लॉस, तो इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया तो मिलेगा आपको स्टैंडर्ड आउटपुट। आउटपुट मिलेगा, इनपुट में से नॉर्मल लॉस को माइनस किया तो मिलेगा आउटपुट। क्या बोला मैंने? इनपुट में से नॉर्मल लॉस को माइनस किया तो क्या मिलेगा? आउटपुट। आउटपुट। लेकिन कौन सा आउटपुट? जो मैंने टारगेट रखा था, जो मैंने सोचा था कि इतना मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, जिसे टारगेटेड आउटपुट भी कहा जाता है। उसको हम मैम कंपेयर मतलब जितना करेंगे। एक्सपेक्ट किया था ना। एक्सपेक्टेड, हाँ, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब जरूरी नहीं है ना उतना ही हो, कभी कभी नॉर्मल लॉस ज्यादा भी होता है, कभी कभी नॉर्मल लॉस कम भी होता है, जिसकी वजह यस। से मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट जो मैंने सोचा होता है ना, उससे कभी कभी मैच नहीं होता है, कभी कभी मैच हो जाता है। तो जब, ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड आउटपुट को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल आउटपुट से। ये एक्चुअल आउटपुट आउटपुट को मैंने हाईलाइट किया है, देखो कलर से, आउटपुट है ये, ठीक है। ये है एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट मतलब मुझे वाकई में कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के मिला, प्रोसेस ए का, प्रोसेस बी का एंड प्रोसेस सी का, आउटपुट कितना मिला, वो हम कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तब तो पता चलेगा एबनॉर्मल गेन है कि एबनॉर्मल लॉस है। देखो बहुत सिंपल है। मैंने, देखो सबसे पहले तो इनपुट, प्रोसेस ए का इनपुट कितना है? 20,000 यूनिट्स। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। प्रोसेस ए में मैंने कितना इनपुट डाला था? दिख रहा है आपको? हाईलाइट 20,000 किया हुआ, यूनिट। हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है? यस। हाँ। अच्छा, अभी प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस कितना है? ये देखो पहला पहला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया स्क्रीन पे, प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस कितना है, कोई बताएगा? 2%। 2%। 2%। मतलब यहाँ पर पहले 2%। लिखूंगी मैं, यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 2%। ये देखो मैंने कैसे लिखा है, ब्रैकेट में 2% लिखा। उसके बाद मुझे बताओ अमाउंट कितना है, या पीछे लिखो 2%। तो मुझे कोई बताएगा 20,000 का 2% कितना होता है? 20,000 का 2%, 400। वेरी गुड, 400। 400। पर इसको मुझे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्यों ब्रैकेट? लेस करेंगे ना इनपुट वेरी में गुड, से। वेरी गुड। तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आना चाहिए? 19,600, एम आई राइट? 600। यस मैम। करेक्ट है यस ये? मैम। हाँ। मतलब 20,000 में से 400 गया। मैंने आपको कॉटन और थ्रेड दिया था 20,000 यूनिट्स, पर आपने उसमें से 400 वेस्ट कर लिया। थ्रेड को काटा काटा, थोड़ा वेस्ट हो गया, फिर कॉटन थोड़ी थोड़ी मशीन में वेस्ट हो गई, तो 400 का लॉस हो गया मेरा। तो बाकी मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट कितना मिलना चाहिए? 1600 यूनिट्स का स्टैंडर्ड आउटपुट मिलना चाहिए था, पर मिला कितना? ये देखो, मैंने बोला ना आपको एक्चुअल आउटपुट में आपको सामने समझाऊंगी। ये देखो, ये आपको दिख रहा है एक्चुअल आउटपुट? दिख रहा है सबको एक्चुअल आउटपुट? हाँ मैम। ये एक्चुअल आउटपुट इज नथिंग बट, माय एक्चुअल आउटपुट इज नथिंग बट जो हम स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपेयर करते हैं और जिससे मुझे पता चलता है कि एबनॉर्मल गेन है कि एबनॉर्मल लॉस है। तो एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस ए में कितना है? 19,500। वेरी गुड। तो 19,500। आप यहाँ पर, 90,500। हाँ, तो आप यहाँ पर लिखोगे 19,500। अब मुझे बताओ आपने सोचा कितना था, आपको मिलना कितना चाहिए था आउटपुट? सोचा था 19,600 19,600। और और मिला एक्चुअल है 600। कितना? 19,500। तो मतलब आपको आउटपुट कम मिला कि ज्यादा मिला? कम मिला। कम मिला। कम मिला। कम मिला मतलब लॉस है। लॉस। हाँ। 100 का लॉस। एबनॉर्मल लॉस, ये देखो नीचे मैंने लिखा है एबनॉर्मल, ए बी एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स। पीछे बार बार यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वर्किंग नोट पहले ही, टाइटल तो हमने पहले ही दे दिया ना कि यूनिट्स में, हमने पहले ही टाइटल दे दिया इन यूनिट्स। आया समझ में कि नहीं?
समझा मैम। Yes, ma'am. हाँ, अब देखो Yes. आप बोलोगे मैम तो फिर बी का आउटपुट, बी का इनपुट कहाँ है, वो तो दिया हुआ ही नहीं है। तो जो एक्चुअल आउटपुट है ए का एक्चुअल आउटपुट, बी का एक्चुअल इनपुट। ए का एक्चुअल आउटपुट कितना है, ए का एक्चुअल, 19,500। देखो 19,500. आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो दो आउटपुट है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट तो ये वो है जो मैंने सोचा था, पर वाकई में मुझे कितना मिला, मेरे हाथ में कितना आया। 19,500 तो जितना एक्चुअल मेरे वाला। हाथ में, हाँ, जितना मेरे हाथ में बन के रेडी होके आएगा वही तो मैं बी प्रोसेस को दूंगी ना, कि अब लो ये आप डाई करो अभी कपड़े को। 19,500 का मीटर का कपड़ा है, आप इसको डाई करना शुरू करो। ये तो मैंने सोचा था 19,600 मुझे मिलेगा, पर मिला थोड़ी, वाकई में कितना मिला 19,500। तो जितना मिला वो मैंने नेक्स्ट प्रोसेस के डायर को दे दिया, मतलब वो डाई करेगा अभी। अच्छा, 19,500 का इनपुट। अब प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस कितना है, 5%. वेरी गुड, मैंने हाईलाइट भी किया है। पर आपको ना नीचे इधर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, थोड़ा दूर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 5%। ठीक है, तो 19,000 का 5% कितना होता है, 975. 975। समझा कैसे निकालना है, 975 ब्रैकेट में। ब्रैकेट, वेरी गुड, ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, तो 19,500 में से 975 गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 18,525. 18,525. 18,525 आना चाहिए था, आउटपुट आना चाहिए था, पर आया कितना, 18,800। 18,800. देखो फर्स्ट सम में ही आप मुझे आंसर्स दे रहे हो। 18,000 क्या बोला, कितना था, सॉरी 800। 18,800 अभी कोई बताएगा एबनॉर्मल गेन है कि एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल गेन है। ये देखो, ये जो दो कॉलम्स मैंने Gain हाईलाइट है। किया ना ब्लू कलर से, उसको देखो। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब है, मैंने सोचा था मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए हाथ में 18,525, पर मिला कितना, ज्यादा मिला 18,800। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है, इसका रीजन एक ही हो सकता है, नॉर्मल लॉस कम हो गया। मैंने सोचा था नॉर्मल लॉस 975 होगा, पर एक्चुअली 975 नहीं हुआ, कम हुआ। जब भी नॉर्मल लॉस कम होता है तो क्या आता है हमारा आंसर, एबनॉर्मल गेन आता है। हाँ वेरी गुड, एबनॉर्मल गेन होता है। और दूसरा एक ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, जितना मैंने सोचा था आउटपुट उससे ज्यादा ही मुझे मिला, ज्यादा मिला तो मेरे लिए प्रॉफिट है ना, क्योंकि आउटपुट ज्यादा मिला तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो बेचेंगे भी ज्यादा, ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट्स, तो हुआ ना एबनॉर्मल गेन। कोई भी लॉजिक आप कोई भी लगाओ, आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग तरीके से बता रही हूँ। बताओ मुझे 18,525 माइनस 18,800, आंसर 275. 75। क्लियर हुआ ये सबको यहाँ तक। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अभी आ जाओ सी का इनपुट, कोई मुझे बताएगा सी का इनपुट क्या है, 18,800. 18,800। वेरी गुड, 800 ना कि 525। ये वाला तो मैंने सोचा था, एक्चुअल आउटपुट। ये तो मेरे माइंड में था। एक्चुअली मुझे कितना मिला 18,800, तो जो बी का एक्चुअल आउटपुट है वो सी का इनपुट हो जाएगा। अच्छा, अभी सी का इनपुट तो मुझे मिल गया, अब मुझे निकालना है नॉर्मल लॉस सी का नॉर्मल लॉस का रेट कितना है, 10%. 10%। ओके, तो यहाँ पर मुझे लिखना है 10%। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 10%। पर आप मुझे बताएंगे 18,800 का 10% कितना होता है, 1,880। 1,880. 1,880, लेकिन ब्रैकेट। यस। अभी समझ में आया सबको इतना। हाँ Yes, मैम। ma'am. अच्छा, अभी स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल के बताइए, स्टैंडर्ड आउटपुट 16,920। 16,920. फिर से बोलो, 16,000। 920। 920. अच्छा, तो एक्चुअल आउटपुट भी देख लेते हैं कितना है, क्वेश्चन में दिखेगा, वो हमेशा दिया होता है। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 2,000. 1000।
3000 इतना कम कैसे है? प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है? एक मिनट रुको, यहाँ से पता चल जाएगा सॉल्यूशन से। 2000 बाकी, चलो कोई नहीं, 2000 जो बोला है वो हम करते हैं, ठीक है। मैंने सोचा था 16,920 मुझे आउटपुट मिलेगा, पर मिला कितना? कितना मिला? 2000 तो मेरे लिए क्या है, लॉस है कि गेन है? लॉस है। हाँ, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये पहले वाले, मतलब हम वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को रिवीजन करवाते थे ना जब भी उनके एग्जाम्स थे, ये लॉकडाउन में, तभी का ये बनाऊंगा। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस मुझे बताओ, एबनॉर्मल लॉस कितना है यहाँ पर? 14,920। वेरी गुड, 14,920। वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, अभी ये सम में दिया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आया समझ में सबको? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अभी हम यस प्रोसेस, ये वर्किंग नोट सबने बनाया साथ साथ में कि किसी का रहा हुआ है? मैम, साथ में। मैम हाँ, बनाया ना? नो मैम। अच्छा ठीक है, बना लो, कोई बात नहीं, टेक 2 मिनट्स, बना लीजिए। सो ये सम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आप ये वर्किंग नोट बना लीजिए, अच्छे से रिवीजन करके रखिएगा ये वर्किंग नोट की, एंड देन हम ये सम को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। बाय प्लीज मैम, आप ये थैंक यू। बाय वर्किंग मैम, नोट थैंक यू जरूर सो रिवाइज मच। करके रखना, ठीक हाँ है। मैम। हाँ, ओके। यस। यस इट मैम। विल जस्ट टेक थैंक यू 5 मैम। मिनट्स, आपके लेक्चर से 5 मिनट पहले आप इसको रिवाइज करके रखिएगा, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। यस ओके यस। मैम। ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। बाय मैम।